हेलो स्टूडेंट्स, देखिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक डाइपोल मोमेंट इन द केमिकल बॉन्डिंग. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Dipole moment basically is the characteristic of a chemical bond, of a covalent bond. Basically, it gives the information about the bond is polar or non-polar. Dipole moment is what? You can say dipole moment. Dipole moment defined as the property of a bond. Defined as the property of a covalent bond by which polar or polarity of a bond or molecule can be predicted. ये बेटा एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी भी बॉन्ड की या कोवलेंट बॉन्ड की जिसके बेसिस पर हम उस बॉन्ड की पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी के बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हैं. Suppose this is the covalent bond AB and suppose the B atom has greater electronegativity than A. तो बेटा आप जानते हो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी बॉन्ड की, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उसकी तरफ ज़्यादा शिफ्टेड होंगे और इसकी शिफ्टिंग से क्या होगा कि इन एटम्स पे एक पोलैरिटी डेवलप होगी, दैट इज नोन एज पार्शियल चार्ज. नाउ सपोज ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी of B is greater than A, these shared electrons or paired electrons shifted towards B. As a result, this bond gets some partial charge on the bonded atoms. Delta sign, it is denoted the partial charge. This partial charge is due to this electronegativity difference, and because electronegativity of B is greater than A, electronegativity is also the property of a covalent bond. Electrons get shifted towards B. A gets some slightly positive charge, B gets slightly negative charge. It shows the polar nature. And suppose if L is the bond length of this bond, then dipole moment defined as, denoted by mu, it is defined as the multiplication or product of this magnitude of charge developed on the bonded species multiplied by this bond length. This will give you the dipole moment. Okay, so this will give you also the definition of dipole moment. Dipole moment is defined as the product of magnitude of charge on the bonded atom developed due to electronegativity difference and bond length of the bond length of the corresponding bond. Charge, bond length, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन डाइपोल मोमेंट कहलाता है. The unit of dipole moment, charge unit आप जानते हो, it is coulomb, length की unit meter. So in the SI system, its unit is coulomb meter. In the CGS, unit of charge is ESU, electrostate unit. Length की unit है बेटा centimeter. So it is the ESU centimeter in the CGS system. हालांकि डाइपोल मोमेंट की स्टडी की थी साइंटिस्ट डिवाई ने, तो डिवाई के अकॉर्डिंग इट्स अनदर यूनिट इज डिवाई, वेयर वन डिवाई इज इक्वल टू 1 into 10⁻18 ESU. This is the unit of charge, and definitely the value of dipole moment, if value of dipole moment is 0, the bond is said to be non-polar. अगर किसी भी बॉन्ड के लिए डाइपोल मोमेंट 0 है तो वो बॉन्ड नॉन पोलर होगा. और आपको पता है ये 0 होगा तो ये चार्ज की वजह से 0 होगा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ तो कभी 0 हो नहीं सकती.
इसीलिए बेटा जब कभी भी किसी भी बॉन्ड में, जैसे ये बॉन्ड यहाँ पे मैंने बना के दिखाया था आपको, किसी भी बॉन्ड में जैसे HF, HCl, HI, HO, ClF, ठीक है, ClS, जहां कहीं भी कुछ भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा या जीरो नहीं होगा, वहां पे डाइपोल मोमेंट भी कुछ ना कुछ होगा, जीरो नहीं होगा। दिस इज द कंडीशन फॉर पोलैरिटी, कि कोई भी बॉन्ड कितना पोलर है या कितना नॉन पोलर है। पार्शियल चार्ज एक्सपेरिमेंटली निकलता है, ठीक है। सो दिस इज द डाइपोल मोमेंट यूज्ड टू प्रेडिक्ट पोलर और नॉन पोलर नेचर। इफ डाइपोल मोमेंट इज जीरो, बॉन्ड इज सेड टू बी नॉन पोलर, ठीक है। नॉन पोलर बॉन्ड्स लाइक bond between similar atoms Cl, H, O, or between any two atoms which have very low electronegativity difference, such type of bonds are generally non-polar because their magnitude of charge either is zero or it is very low. इसकी वैल्यू बहुत कम होगी या जीरो होगी। इस करके हम कह सकते हैं कि ये जो बॉन्ड्स होते हैं नॉन पोलर होते हैं, ठीक है। जहाँ के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मिलेगा वहां पे बॉन्ड पोलैरिटी शो करेगा। अब बेटा इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं, डाइपोल मोमेंट के बेसिस पर कुछ चीजें हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सो व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ डाइपोल मोमेंट? एप्लीकेशंस ऑफ डाइपोल मोमेंट, with the help of dipole moment we can find out first one, percentage ionic character of a covalent bond। किसी कोवलेंट बॉन्ड में हम परसेंटेज आयनिक करेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं डाइपोल मोमेंट की हेल्प से। कैसे? आपको डाइपोल मोमेंट जो दिया जाएगा, ये जो कैलकुलेट करोगे आप फॉर्मूले से, ठीक है। डाइपोल मोमेंट ऑब्जर्व्ड, ये किसी भी बॉन्ड की पोलैरिटी के बेसिस पर ही कैलकुलेट होता है कि ये बॉन्ड एक्चुअली में कितना पोलर है, डिवाइड बाय इट इज आयनिक, कितना ये आयनिक परसेंटेज है, कितना ये आयनिक परसेंटेज है इसका। जब आप इसको 100% आयनिक कंसीडर कर लो तब डाइपोल मोमेंट कितना है, इन दोनों का रेशियो 100 से मल्टीप्लाई कर लो, then it will give you the percentage ionic character. Basically this calculation is based on when you consider the bond is the 100% ionic, and this calculation is based when the bond has actual percentage of the polar character. In the most of the questions this value is given, and this one we have to calculate with the help of this formula, charge into length, and we have to consider the charge as the full charge, so that we consider the 100% ionic, and this ratio will give you the percentage ionic character of the bond. With the help of dipole moment we can find out relative polar nature, ठीक है। जैसे देखिए HCl, HF, HBr, HI, this is the dipole moment order of these compounds, so this is also the polar nature of these compounds. डाइपोल मोमेंट एक्चुअली बॉन्ड लेंथ और चार्ज दोनों का मल्टीप्लिकेशन है। इसके हेल्प से हम परसेंटेज आयनिक करेक्टर निकाल सकते हैं, पोलैरिटी पता कर सकते हैं। बेटा डाइपोल मोमेंट के बारे में एक और छोटी सी चीज है कि डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। व्हेन यू हैव टू फाइंड आउट द डाइपोल मोमेंट ऑफ एनी बॉन्ड हैविंग चार्ज, देन दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी हैविंग डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, इट्स अ वेक्टर वन, इसलिए इसको आप वेक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हो। डाइपोल मोमेंट इज आल्सो यूजफुल टू फाइंड आउट द सिमेट्री, नॉन पोलैरिटी और पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कई ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिनका नेट डाइपोल मोमेंट 0 होगा, ठीक है। कई बार क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव है, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, नेट डाइपोल मोमेंट 0। हालांकि कंपाउंड में बॉन्ड पोलर है लेकिन ओवरऑल कंपाउंड नॉन पोलर है। चिल्ला नहीं।
समझ गए। ऐसे ही कुछ कंपाउंड्स और हैं, जैसे BF एक कंपाउंड बॉन्ड है, ये पोलर बॉन्ड है। बट अगर हम बात करें BF3 मॉलिक्यूल की, दिस मॉलिक्यूल सिमेट्रिकली इट इज अ ट्रायंगुलर प्लेनर, नेट डाइपोल मोमेंट इज कैंसल आउट 0। मतलब जहां पे सिमेट्री होगी, कोई लोन पेयर नहीं होगा, वहां नेट डाइपोल मोमेंट 0 होगा। बॉन्ड चाहे पोलर हो बट पूरा का पूरा कंपाउंड नॉन पोलर होगा। अगर कहीं लोन पेयर्स आ जाते हैं, डिसिमेट्री है, डिस्टॉर्टेड सिमेट्री है, तो वहां पे कुछ ना कुछ पोलैरिटी होगी और उनका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। फॉर डिसिमेट्रिकल molecules net dipole moment is not equal to 0, इनमें पोलैरिटी होगी। ठीक है, बहुत से ऐसे कंपैरिजन है बेटा हम कर सकते हैं। ठीक है, कुछ कंपाउंड्स हैं, जैसे वी कैन डिस्टिंग्विश आइसोमर्स, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो, मेटा और पैरा। इसमें इसका डाइपोल मोमेंट तो 0 ही हो जाता है, क्योंकि ये दोनों ही आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। इसका डाइपोल मोमेंट हम वेक्टर के रिजल्टेंट फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। इन तीनों के डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर ये है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ठीक है, इसमें 60 का एंगल है, इसमें 120 का एंगल है। आपको पता है रिजल्टेंट निकालना हो कभी टू वेक्टर्स का, टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट, μ1 स्क्वायर μ2 स्क्वायर 2 μ1 μ2 cos थीटा अंडर रूट। ठीक है, इसके अलावा एक और कंपैरिजन कर सकते हैं आइसोमर्स, सिस एंड ट्रांस। ये ज्योमेट्री में हम पढ़ेंगे, ज्योमेट्री में कंपैरिजन करना होगा। ट्रांस आइसोमर्स का डाइपोल मोमेंट 0 होता है मोस्टली, सिस का डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता है। ये भी आगे पढ़ोगे, इसलिए इसको अभी डिस्कस करना जरूरी नहीं है। इसमें ये पोलर होते हैं, ये नॉन पोलर होते हैं। इसमें पोलैरिटी का ऑर्डर ये है। तो इस तरीका से किसी भी कंपाउंड की पोलैरिटी, नॉन पोलैरिटी डाइपोल मोमेंट के बेसिस पर एक्सप्लेन हो सकती है। परसेंटेज आयनिक करैक्टर निकाल सकते हैं। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, फिर तो वो ऑब्वियस है कि नॉन पोलर ही होगा। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 नहीं है तो पोलर हो सकता है, और उसमें भी सिमेट्रिकल है, जैसे CO2 BF3। तो बॉन्ड्स उनके पोलर है बट ओवरऑल कंपाउंड नॉन पोलर है। नॉन पोलर मतलब जिसमें कोई चार्ज ना डेवलप हो, और पोलर वो है जिनके पार्शियल चार्ज डेवलपमेंट हो या उन पे कुछ नेट डाइपोल मोमेंट होगा। ओके, सो वॉच दिस वीडियो फॉर द डाइपोल मोमेंट, एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज कॉल मी और मैसेज मी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।